Thank you so much, Pallavi ji. Thank you, Pallavi ma'am, for having me on your film. It's very difficult to, if the film looks bad or if the edit is bad, it's very difficult to make a good background score. But I was like gifted with such great visuals and such a great story that everything just sort of went by very smoothly, and I had so much creative freedom from Kedar. He really just let me do whatever I want. So, you know, when you have like Vineet just with his epic entrance, it's just so easy to make like a great score. So thank you so much, and it was a great experience. Thank you so much. Just wait. बिना महके हुए फूल दिए हम आपको कैसे जानेंगे? मैं request Pallavi Gurjar to please come and present him with a lovely bouquet of flowers. This is our way to say thank you so much for being part of this beautiful film, Match Fixing. Thank you so much. It's a huge privilege, everybody. बहुत ही स्पेशल फिल्म है ये, और पेट्रियोटिक फिल्म में एक रोमांटिक गाना घुसाने वाले केदार सर, जो मतलब पहला ब्रीफ मुझे इन्होंने दिया था गाने का, आशियाने का था. एंड आई एम अ वेरी एंशियस पर्सन इन जनरल. I cannot wait. I don't have any patience. So whenever I get a brief from Kedar, and let me tell you, हम करीबन 7-8 साल से काम कर रहे हैं साथ में, अराउंड. ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में, एंड इट्स काइंड ऑफ अ जोड़ी हमारी. तो whenever he gives me a brief किसी गाने का, आप लोग तो जानते ही होंगे कि म्यूज़िक का जो प्रोसेस होता है वो कितना ब्यूटीफुल होता है. मतलब जहाँ पे चाह के भी इंसान ना हार्श नहीं हो पाता. बट व्हेन केदार गिव्स अ ब्रीफ, ही गिव्स अ ब्रीफ, ही इज सो मच ऑफ एनर्जी कि मतलब मेरा पेशेंस ही नहीं रह पाता. मुझे लगता है अभी बनाना यार, मुझे अभी गाना बनाना है, अभी बना के देती हूँ. So that's what happened for this song as well. Ashiana is a very soft, soothing, soft rock melody, जो I hope आप लोगों को अच्छा लगा है, और बाकी आगे भी ऑडियंस को, सबको, पूरे विश्व में अच्छा लगे. हमारी बहुत मेहनत है. पल्लवी मैम now comes to you, and Junaid, please come here. He is the male voice of the song, the main voice of the song. मेरे तो खैर जी, आप भी please एक बार, केदार please, just this is my gratitude to both of you and to you, and I'm thankful to both of you for giving me this opportunity. और बहुत I mean मेरी दुआ है कि गाने तो अच्छे हो ही हो, ये फिल्म बहुत अच्छी आगे बढ़ती जाए और हम साथ में ऐसे ही काम करते जाए. एंड जुनैद, a few words please. Hello everyone. I mean this is so unreal for me क्योंकि ये एक सारा एक ड्रीम था मेरे लिए कि बचपन से ऐसे मूवीज देखना थिएटर में, और किसी सडनली ये गाना चल रहा है और उस चीज़ से इतना फैसिनेट होना कि यू नो this was a dream for me कि एक मूवी में खुद का ऐसा गाना सुनो. Even I have worked a lot, struggled a lot, and finally किस्मत ने कुछ दोस्तों को मिला दिया, and then I met Rimi, and thank you so much for actually calling me and making me sing this song, and and thank you so much Pallavi ma'am, thank you so much. And I mean I can't thank enough to whole match fixing team. Like I'm just lost words, seriously. Thank you so much. Thank you. I'll say a few words about Junaid. Junaid is a very fresh voice in our industry, and he is doing actually fabulous. और इस गाने की किस्मत बहुत अच्छी है जुनैद कि तुम्हारी आवाज़ मिली है. एंड पल्लवी मैम, आई एम
रियली थैंकफुल कि आपने इतना उस पर विश्वास रखा. एंड a few words both of you for this song, please. I think having Rimi for this was a wonderful experience. मतलब Rimi is so full of energy कि जैसे केदार उसे ब्रीफ देता था वो रात को सोती नहीं थी. Can I tell the story of the second song? Second song, I was in Delhi in the morning. I landed and first song. Okay. दो लाइन दूंगा Of course, of course. लाइव दो लाइन सुन रहे मिलती है दो खुशियां नसीब से, मिल जाए तो रख ले करीब से, आशियाना मेरा भी था एक आशियाना मेरा भी था. दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगी कि हब्बा कडल श्रीनगर की वादियों से जुनैद प्यार का पैगाम लेकर निकले हैं, जो चहु और पूरे हिंदुस्तान में वो प्यार का पैगाम उस हसीन वादियों में पहुंचाना चाहते हैं. और जिस हसीन वादियों में आपने अभी एक मिलिट्री ऑफिसर को आशियाना गुनगुनाते हुए सुना है, इन्होंने गाना डाल दिया था. So, wish you all the luck and all the best. Can we felicitate both of them? I would request Pallavi ji and Kedar ji to please present them with bouquet of flowers. This is our way, Art and our Creations Private Limited way to say thank you for producing and giving us such a beautiful music. ताकि सभी लोग गुनगुनाएं और ये Spotify पर ट्रेंड करें. उसके लिए हमारे मीडिया के जो हमारे गेस्ट हैं, आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो ऑफ बीट इस तरह की फिल्म है जो पूरे प्रेम, त्याग, समर्पण और भारतीयता को उकेर रही है, उसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोशन कीजिएगा ज़रूर. Remember it, 10th January is the D-date it is going to be releasing on 10th January. Note it down. Thank you so much. Thank you so much. Yes. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म का कश्मीर से लेके कुछ ना कुछ कनेक्शन था. मतलब we were advised by many that we shouldn't go to Kashmir and it will be very difficult for us to film in Kashmir. That's the truth, okay? But when we set off for the recce, we went to Kashmir, we fell in love with Kashmir. It was my first time in Kashmir last year. And then we went to other parts of North India, other states. And both me and Pallavi looked at each other. And we realized, we came to know, we did not have to say a word. We just looked at each other and we knew that Kashmir is the location. Okay, Kashmir is heaven. भारत का ऐसा एक अंग है कि जिसको when you go there you fall in love with that part. And when it came to the song, another coincidence, Junaid came and sung the scratch of this song, and we were contemplating on कौन होना चाहिए final गाने का singer, and then we realized that somewhere that thing clicked. That Kashmir और इस सिनेमा का रिलेशन कुछ बहुत गहरा है. Everybody who's sitting here and who's shot in Kashmir, right from Vinit sir to Ramanjit, will realize that how beautiful it was. So it was wonderful to have you. Me and Rimi and Pallavi had this discussion and we decided that Kashmir का कुछ गहरा connection इस film के साथ है, तो why not Junaid? So that is how we decided. Junaid has to sing. Congratulations, Junaid, and he has done a fabulous job. It brings goosebumps on each and every one. Thank you so much. Thank you. कश्मीर की वादियों का संगीत. जब ये ब्रीफ मेरे पास आया, it's a pleasure to listen to a story when Kedar is narrating. So we
वी वर ऑल वेटिंग कि नहीं केदार का जब हमें ब्रीफ मिलेगा उसके बाद वी विल स्टार्ट राइटिंग. बट इस गाने में मेरा बहुत ज़्यादा कुछ इनपुट ऐसा था नहीं, क्योंकि एक लिरिसिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस हुक को क्रैक करना जो इसने ऑलरेडी कर रखा था. तो एंड आई वाज टोल्ड दिस स्टोरी, मुझे कहानी मालूम थी, मेरे पास हुक था, तो गाना क्रैक करना मुझे मतलब बहुत छोटी सी बात हो जाती है फिर. तो बट आई एम थैंकफul टू रिमी, केदार एंड पल्लवी जी for having me on board this movie, and I wish everybody here a great success, the crew, Vineet sir, everybody here, all the very best, and may we have a very hit film from here. So many hit songs. Like recently she wrote a song for Bhool Bhulaiya 2 and the Mere Dholna ka reprised version जो है written by her. So we have a very talented woman right here. तो बहुत modest बन रही हो बहन तुम तो. मतलब इस स्टेज पर सब सेलिब्रिटीज तो हैं ही, isn't it? Your तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, जब ब्रीफ मिला था मुझे कि रिमी ने बोला था कि देशभक्ति वाला गाना है, तो जहाँ देशभक्ति की बात है तो हम कूद पड़ते हैं हमेशा, और बहुत ही मज़ा आया था जब गाना रिकॉर्ड हुआ था. और एक बात और थी इसमें कि इस मूवी का जो कैरेक्टर है, जो महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है, और मैं खुद मराठा हूँ, तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो मराठी मैंने गाया है दिलेर सर के साथ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया गाने में. अरे यार थोड़े लिरिक्स के एक मराठा लाख मराठा. बिल्कुल. सॉरी, लिरिक्स थोड़े से आपको याद है तो आप साथ उठ मराठा मर्द मावळा रान झाडजी, शूरवीर तू मर्द मावळा रान गाडजी, जी 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 रान झाडजी, जी 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 हो. थैंक यू. Please, we would like to felicitate them with a bouquet of flowers. But उससे पहले आपकी बानी. So felicitation के पहले I want to tell the story about this song. This song was planned later on in the film. हमने situation shoot कर लिए थे पुणे में, and we thought that I wanted to put a bomb on producer that the situations are too many and we require a song over here. She graciously accepted. I gave the brief to the ladies and they jumped in. And one night when, sir, you remember we had a longest night, 12:01 we packed up, and this lady calls me in the middle of the night and I'm half dead, and she tells me that बहुत जोर का गाना आया है. मैंने बोला यार तू पका मत अभी, छोड़ दे, कल देखते हैं मॉर्निंग में. But when I woke up in the morning for the next day shift, the scratch was ready. I shared it with Vineet ji, I shared it with Pallavi ji, and both of them just loved it. They started humming it. That is how this song was born. Thank you Prashant, thank you Saviri for jumping in, thank you Rimi. मैं माइक की जरूरत नहीं है, इतनी डिस्टेंस भी नहीं है. ये सारा डिसीजन केदार का है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि केदार प्लीज़ ये हक हमारा है. नहीं प्लीज़, मैं पीछे खड़ा रहूँगा डायरेक्टर के, प्लीज़ कम प्लीज़. सी हाँ मैं बिल्कुल. इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ में वही. सर प्लीज. यस प्लीज. Minute, center look, Minute. Yeah. फिल्म में दोनों एक साथ नहीं है, अभी देख सकते हो. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. थैंक यू. एंड रिमी, मुझे ना मतलब हम लोग कड़कड़ाती ठंड में शूट कर रहे हैं. थैंक यू. शिफ्ट भी बहुत लंबी थी और अचानक से केदार का आना हुआ. केदार सेट की रिमी को गाना आया है, क्या किया जाए अभी. बोला अगर गाना आया तो आने दो. क्योंकि जब आधी रात में कोई चीज ऐसी कह रहा है कोई,
तो कुछ तो भी है जो बहुत स्पेशल है. जस्ट पुश हर एंड ही ऑलवेज पुश. हमेशा हम लोगों को वो रिजल्ट मिला. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much everybody. और I've always been fortunate, very, very fortunate that I'm always a part of something very important, you know, which gives a message, which tells you the history or the series of events that are necessary to be told. So, you've already seen मेरा character क्या है. You already know that I am playing Mrs. Anuradha Patwardhan, the wife, the army wife, and the Kedar. I mean, I would say Kedar का brief ही इतना perfect था, and he really wanted the wife to be a very, very strong woman. You saw that snippet जहाँ पे I'm talking to him before the song starts, and both of them, Pallavi and Kedar, did not want me to cry at all, and that is how strong that character is. So that's it. Thank you very much. Takes Didi, I was not on the scene many times, but whatever I saw later on, I think Kedar will tell much better. But she did it fantastic. And it was very easy to work. She used to be very fast on the. कौन बोला? मतलब साड़ी पहननी है. दीपक क्या बोला तू? Song, if you see, there were so. अरे स्मोक मत दो यार. वैसे हीरो हीरोइन को तो सब चाहते हैं, लेकिन बैटमैन को कौन कौन चाहता है यहाँ पर? अरे क्या बात है, क्या बात है. So let us have the Batman on the dais. राज अर्जुन जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से ये किरदार को निभाया है, और किस तरह से निभाया है, आप आइए उन्हीं से सुनते हैं. वेलकम. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मुझे लगता है मेरी बालों और मेरी दाढ़ी ने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है बैटमैन की. पल्लवी से पूछते हैं मैं बैटमैन हूँ क्या फिल्म में? In the film, he is playing the character Colonel Imam, but he, in spite of being from Pakistan, he is actually a very sensitive guy. He is a very sensitive guy, even on the screen and even off screen. Is that what I can see? He is my wonderful friend. He is my wonderful friend. He stood by me the moment I read this book. I read this book and I saw this thing, Colonel Imam. I called him कि तुम जनवरी में क्या कर रहे हो, कोई काम मत लेना. I have thought of something, so please keep time for me. And then I told him that you are doing Colonel Imam, and Kedar agreed to it. I and Kedar went to meet him first time. We were waiting down in a lobby, and he came. And जैसे ही वो ऐसे चल के आया, केदार बोला यही कर्नल इमाम है. This is a perfect thing for Colonel Imam. And that is how he was in part of the film. Thank you so much. तो मेरी पुरानी फिल्मों को रिलेट करके आपने शायद ये गैस कर लिया कि मैं नेगेटिव हूँ या विलन हूँ. एक्चुअली कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव या विलन होता नहीं है. वो सिर्फ साइकोलॉजी का खेल होता है. वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता है. वो तो ऑडियंस है या पब्लिक है, वो उसको एक ग्रे शेड में या ब्लैक शेड में या वाइट शेड में देखती है. थैंक यू सो मच. और एक और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया है. मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ उन्हें बुलाऊंगी. एलियाना टुटेजा, प्लीज वेलकम हर ऑन द डाइस. Your take about this beautiful character that you have played. हम यहाँ पीछे देख रहे हैं ये तस्वीर उनकी. Yes. वास्तविकता में बहुत डिफरेंट लग रही है, but yes, your take. What would you like to say? सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी केदार जी को, पल्लवी जी को, कि मुझे यहाँ पे इस मूवी में किरदार निभाने को मौका दे दिया. और यहाँ मैं आप लोग देख सकते हो ये मैं ही हूँ. मैडम जी का कैरेक्टर मैं ही निभा रही हूँ. और
क्योंकि पहचान नहीं पा रही हूँ, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए हमारी मेकअप आर्टिस्ट को जिन्होंने ट्रेमेंडस वर्क किया मेरे ऊपर, एंड ऑफ कोर्स केदार जी जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये कैरेक्टर में घुसने के लिए। वैसे मैंने ये सेम कैरेक्टर मतलब सेम पीस कैरेक्टर मैंने किया है पहले, सो इट वाज अ बिट इजी बट इट वाज टोटली डिफरेंट इन दिस मूवी। सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और दिखाया है पर्दे पर, इज ही अराउंड हियर? ओके ओके, कैन वी हैव द और एक और एक्ट्रेस को हम बुलाना चाहेंगे, रमनजीत कौर जी, प्लीज कम ऑन द डांस। योर टेक, आपने जो खूबसूरत किरदार निभाया है उसके बारे में बताइए। मैडम इस साइड आइए, लाइट में थोड़ा इधर आइए, सेंटर में आइए, सेंटर में। Namaskar. Thank you so much, Pallavi and Kedar. I hope he comes in fast. I have always played in theatre and films. It's more than 3 decades now. International collaboration films I've done. So this is my first Bollywood. And I've always played the good role, you know, the tragic queen and the good role. So I'm very happy that I'm playing a different role. I wouldn't say anything else, but I would say different role of a very important character that plays a very important part in the narrative, and I hope आप सबको पसंद आएगी। जो भी अलग अलग कहानी के पहलू इस पूरे टाइम में गुजरते हैं, and I feel very privileged to be a part of a film where जहाँ सभी एक्टर्स इतने उम्दा हैं, राज अर्जुन, अनुजा, विनीत, लीना एंड मनोज जोशी जी खुद अभी अभी पहुँचे हैं। बहुत प्रिविलेज ऑनर फील होता है कि मेरी पहली फिल्म चाहे छोटा रोल है पर आप सबके साथ शुरुआत हुई। सो बहुत बहुत शुक्रिया केदार का और पल्लवी जी का कि मुझे इसका हिस्सा बनाया। थैंक यू। Thank you so much. Pallavi ji, can you give the bouquet of flowers to all our artists? और दोस्तों, can we have a keep clapping? Sure होना चाहिए मैच फिक्सिंग के लिए। Yes, please stay back. दोस्तों, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को स्मरण कराते हैं, और वो पूरे इतिहास को, भारतीयता को स्वर्ण अक्षरों से, स्वर्ण पन्नों से चाणक्य का करने वाले हम सभी के लाडले प्रिय अभिनेता मनोज जोशी जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और इस मंच पर हालांकि उन्होंने मुशर्रफ का किरदार निभाया है, वेलकम। क्या बात है, आज तो आप मनोज जी, आज तो आप बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। ये बताइए, ये मुशर्रफ के रंग में आने के लिए पापड़ तो आपको बेलने नहीं पड़े, लेकिन आपको डंडे पड़े क्या? नहीं, पापड़ तो नहीं बेले। अरे स्टिल एक्चुअली पहली बार जब केदार और पल्लवी जी मेरे घर आए, और मुझे लगता है उन्होंने अभी तक कास्टिंग शुरू नहीं किया था, और पहला ही कास्टिंग उन्होंने मेरा किया, और मेरे घर आए, मुझे इतना ही कहा कि हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। बोले थोड़ी पीरियड फिल्म है, पीरियड मतलब 2003-4 से लेकर अभी तक की, विषय तो नहीं बताया। मैंने कहा, वो बोला ये कैरेक्टर है करके उसने फोटो बताया, मेरा फोटो और मुशर्रफ का फोटो। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा अभी अभी मैं एक मराठी फिल्म की है जिसमें भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का रोल करके आया हूँ, यूपी फाइल करके आया हूँ। अब
अभी डायरेक्टली तुम मुझे दे रहे हो मुशर्रफ, तो मैं बोला क्या है, क्या स्टोरी क्या है। उसने पूरी स्टोरी मुझे नरेट की और कर्नल खटानाजा की बुक जो है सेफ्रॉन टेलर, वो मुझे दी पल्लवी ने, और मुझे कहा आप पढ़ लेना। बोला ठीक है। मैंने तो तुरंत हाँ बोल दी जैसे ही मैंने नरेशन सुना, और बस फिल्म आपके सामने है। बहुत केदार ने अद्भुत डायरेक्शन किया है, और मैं पल्लवी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि एक सिंगल प्रोड्यूसर, आज तो स्टूडियो का ज़माना है, कॉरपोरेट सेक्टरों का ज़माना है, और फिल्म्स किस प्रकार की बन रही हैं इस विषय पर मैं नहीं बोलूँगा, बट एक अच्छी फिल्म बनाना और एक सिंगल प्रोड्यूसर ने बनाना आज की तिथि में बहुत चैलेंजिंग है, और इसलिए मैं उसको सैल्यूट करता हूँ प्रोड्यूसर पल्लवी गुर्जर को और केदार गायकवाड़ को, कि इस तरह से मार्केट में आना। क्योंकि देखो बड़ी फिल्म होती हैं, फिर उसका वो अच्छा अगर सब्सटेंस है तो चलती है, बट उसका भी क्या होता है, कितना भी प्रमोशन करो, बट अगर सत्व नहीं है, कंटेंट नहीं है, बात में बात नहीं है, तो वो फिल्म कुछ मायने नहीं रखती। ये हम देख रहे हैं। तो कंटेंट के साथ, और इतने जबरदस्त कलाकार, भाई साहब ने क्या काम किया है यार, आई लव यू, ही जस्ट रॉक्ड इन द फिल्म, इवन विनीत ग्रेट काम किया है। मैंने कल ही पूरी फिल्म देखी, और ऑफ कोर्स अनुजा, यू डिड अ एक्सीलेंट जॉब। मतलब इतनी होल्ड और कमाल, मेरी फिल्म है इसलिए नहीं बखान कर रहा हूँ, बट एक चीज, और क्यों की फिल्म ये, तो ये इसलिए क्योंकि इस प्रकार के झूठे नैरेटिव फैला के अंदर के भाई भाई को लड़ाना, ये काम सत्ताधीश किस प्रकार से करते थे, और फिर एक झूठे नैरेटिव को वाचा देना कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है, इस प्रकार से सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए इस प्रकार से देश को स्टेक पर रखना, ये प्रकार के खेल खेले जाते थे, और ये उजागर होना बहुत जरूरी है, और ये काम इस लड़की ने किया है, इसलिए मैं इसको सैल्यूट करता हूं। और केदार ने इतना अद्भुत दिग्दर्शन किया है, इतना अद्भुत निर्देशन किया है, कि पूरी फिल्म आपको विचार कर अंतर्मुख करती है, और आपको इतना टच करती है कि बॉर्डर पे संरक्षित करने वाला पूरी कंट्री को, पूरे देश को आंखों में, मतलब बिल्कुल नींद न आते हुए हम लोग सुख से सोते हैं और वो वहां जगते हैं। और एक संदेश इस फिल्म से मिलता है कि हमारे देह और भगवान के बीच में देश आता है, ये संदेश है इस फिल्म का। तो हर राष्ट्र प्रेमी ने, हर भारतवासी ने, हर भारत के नागरिक ने ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। और मैं माध्यम को बोलता हूं कि माध्यम, आप लोग चौथा स्तंभ हो, और चौथे स्तंभ का ये भी काम है कि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आपका काम है। ये कोई बड़ी, मैं इसलिए बारंबार बोलता हूं कि इतना मार्केटिंग और करोड़ों रुपए का मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि इससे बढ़िया मार्केटिंग कोई नहीं है, जो जिसको बोलते हैं माउंट पब्लिसिटी, और ये सशक्त करने वाले आप ही हो। और इसलिए माध्यम, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये मैच फिक्सिंग जो फिल्म आ रही है, उसको सभी तक पहुंचाना ये आपका भी कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं, और आप जरूर पहुंचाइए। और सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि 10 जनवरी को परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म जो है वो थिएटर में जाकर देखिए। आपको निश्चित रूप से एक नया चैतन्य निर्माण होगा ये फिल्म देख के, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो कहा इंडिया मस्ट ब्लीड। थैंक यू। ये थे हमारे आपके चहेते पद्मश्री मनोज जोशी जी। और अब सबसे
बड़ी बात और होती है जब ऐसे किरदार उसे निभाते हैं। लेकिन अच्छी कहानी को लिखने वाला है अनुज मेहता जी, जो मंच पर आते हैं। सर आ जाइए। यस यस प्लीज प्लीज। और कंवर खटाना जी आ गए हैं, जिनकी किताब से पल्लवी, which spreads a false narrative, it propagates the false narrative among the people. So she wanted to. पहले आप बोलिए। मिलिट्री में थे, उन्होंने ये किताब लिखी और मैं आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन RVS Mani, Saffron Terror. तब while googling I got this book, The Game Behind Saffron Terror. बहुत दिनों से इस विषय पे कोई फिल्म नहीं आई है, ऐसा मैं सोच रही थी कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। जब ये किताब मुझे सामने नजर आई, आई वेंट थ्रू द बुक एंड द बुक हैड अ स्टोरी। मैंने राइट्स तो ले लिए एंड फिर एक दिन मैंने केदार को पढ़ने के लिए दे दी। केदार ने दूसरे दिन मेरे को फ़ोन करके बोला 10 पेजेस नहीं पढ़े पल्लवी, इसमें ना मुझे फिल्म दिख रही है। एंड वी जस्ट टुक दिस होल थिंग अहेड। सो आई थैंक कंवर खटाना जी for giving me the rights and choosing me to give the rights, and also Anuj for converting this book into the screenplay, which was also a very difficult task, and in a very limited period he could come up with so many venues, places and characters कि अभी आप काम चालू करो और मैं screenplay लिखना शुरू करता हूँ। Kedar did a wonderful job, and the hero, effect. Come, please. If you see Vineet in the uniform, matlab I could not differentiate that he is not the regular. It's a wonderful movie. We had a show on Saturday in Delhi, primarily for the military people. You must have heard of the Agniveers. We called Agniveers who were undergoing training in Delhi, 300 of them. We call GSOs in OAS and their families. And almost 300 officers and their families and the guests. You'll be surprised after the movie was over. We had 80 and for almost 2 hours, everybody spoke about the movie and every one of them highly appreciated. Thank you, all the people connected with this movie, Pallavi, Kedar and the cast. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank bringing me on board this. I had seen all these characters on my laptop for the first time on 1st November 2023. Now I'm seeing them together here. So it's very exciting. बंद दरवाजों के पीछे की जो political conspiracies चलती है, interestingly शायद ही अनुजा और विनीत सर के अलावा कोई भी एक दूसरे से मिलते नहीं है पूरी फिल्म में कैरेक्टर, और फिर भी एक उसका स्क्रीन प्ले चलते रहता है. So I'm very thankful to everybody. Thank you. It's an honor writing a film for the army. It's a patriotic film. Please come and watch it. Thank you. थैंक यू सो मच। और दोस्तों, एक कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाते, बिखर जाती है क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई होता नहीं। तो अगर डायरेक्टर विजनरी है, डायरेक्टर को चीज़ें दिख रही हैं, समझ रही हैं, तो हम लोग एज एन एक्टर डायरेक्टर को सुनते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सो थैंक यू सो मच केदार एंड थैंक यू पल्लवी। मैं बड़ा फैन हूँ मनोज भाई का और बहुत सारा काम देखा है। थैंक यू सो मच मनोज भाई फॉर सेइंग यस टू दिस फिल्म। मौका नहीं मिला इस फिल्म में हमें एक साथ फ्रेम शेयर करने का, लेकिन ये मलाल लेके जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये मलाल मुझे चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंडिंग के साथ किसी फिल्म में मिलेगा। इस फिल्म के बाद मैं विनीत का फैन हो चुका हूँ, मैंने उसका काम देखा है, लेकिन इतना अद्भुत काम किया है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि परफॉर्मेंस, मतलब हम सब आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, लेकिन
इतनी जान डाल दी है उसने अब किरदार में कि वो आपके मनोमस्तिष्क पर सवार होता है वो किरदार, पूरी फिल्म। एंड सारे कलाकारों ने अद्भुत काम किया है, क्योंकि अभी ये धीरोदात्त नायक है इस फिल्म का, तो मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ। थैंक यू वेरी मच, यू डिड अ एक्सेलेंट जॉब। Thank you so much, Manoj bhai. Coming from you means a lot. I am so humble. Thank you so much. Thank you, Kanwar Khatana sir. आपने एक ऐसा बीज डाला जिसकी वजह से आज हम सारे यहाँ हैं. And thank you Anuj for writing such a wonderful screenplay. मुझे पता नहीं यहाँ की प्रोटोकॉल क्या है अभी ये स्टेज की, लेकिन कहते हैं ना कि परिवार जब पूरा हो तो वो फ्रेम अच्छा लगता है. राज, प्लीज कम. I would like to call entire team on stage once.